about the essence of the Gita. So this is always the thing. People are always interested in the teaching, not in the example of the teacher. People are interested in the Gita, not in the way Krishna lived. The way he lived is the teaching. For those who did not get it, for them he had to verbalize. So if you get the spirit behind what he is doing, if you get the wisdom behind what he is doing, if you understand the intelligence behind what he is doing, the context of what he is doing, you know the Gita. You know, I was speaking to somebody in the public domain and I had to admit that I have not read the Gita. I said, now we're doing… भगवद गीता पढ़ी है आप लोगों ने? एक है ज्ञान, जिसको बोलते हैं ज्ञान योग। उसका अल्टीमेट एम क्या है? ये रियलाइज करना कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको ब्रह्मन भी बोलते हैं। ब्रह्मन मीन्स द सुप्रीम रियलिटी। आत्मा भी इसी को बोलते हैं, परमात्मा भी इसी को बोलते हैं। इसी के अलग अलग नाम है। ओम बोलते हैं इसको, ओमकार बोलते हैं। जो गुरु नानक जी ने कहा है ना, एक ओमकार सतनाम, इसी की बात करी है। सतनाम का मतलब क्या? वो जो सत्य है। अभी मैंने बोला संदीप, क्या ये सत्य है? आज है, कल नहीं है। ये नाम जिस तरफ इशारा कर रहा है, वो बॉडी भी और ये नाम भी। संदीप नाम पैदा हुआ और मर गया। नाम मतलब क्या? आवाज। आवाज पैदा हुई और मर गई। ये आवाज जिसकी बात कर रही थी, वो भी पैदा हुआ और मर गया। ये आवाज ना तो पैदा हुई है, ना कभी मरती है। आपने पैदा करी क्या इसको? आपके होने से पहले भी ये थी, आज से हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए इसको सतनाम बोलते हैं। अब क्या हुआ? आप लोगों ने एक जंप मार दी। जंप मतलब क्या? कि जहां पर पता नहीं कब पहुंचना था, वहां पर अभी पहुंच गए। अब एक जंप और मारनी है। वो जंप क्या है? कि ये क्या है और मैं क्या हूं। आप समझ गए? उस दिन आपकी रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये तो आपने रियलाइज कर लिया, बट आपके लिए क्या है? एक साउंड ही तो है। आप कहोगे जो भी है रियलिटी है, ये है वो है, आपके लिए होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना? अगर मैं कहूं ये आप ही हो, तो अभी समझ नहीं आएगा ना। इसको समझना है। जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, सेल्फिश डिजायर्स। थॉट्स ना के बराबर रह जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे। इसको जितना आप गहराई से समझोगे, थ्रू भगवद गीता, वेद, उपनिषद, सूफी जो लोग हैं उनकी बातें सुन सुन करके, पढ़ के, ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाए बारीकी से कि ये क्या है, मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, भगवान क्या है, ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाए, तो आप समझ जाओ आप बन गए ज्ञान योगी। अब आपको ज्ञान हो गया, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। देन यू आर लिबरेटेड। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हर एक… So we're doing this Mahabharata program, now I am compelled to read it. But I still passed Mahabharata program without reading it. That's why I skipped. So, there is no better insight into the teaching of anybody than the way he lives. If he lives one way and teaches another way, he's a fake teacher, isn't it? Just look at Krishna's life, don't believe his words. Who knows whether it's his words, somebody added up? We don't know. Look at his life carefully, unprejudiced, unjudgmental. Just look at the life in the context of his existence, you will definitely know the Gita. If you want to know what Isha is about, don't just listen to the audio cassettes or video CDs. You just look at the way everything is being done, that is the teaching. If you don't get it, you want another teaching that you can take away with you,
No. Life's wisdom does not come that way. That whenever you want, in an emergency, you can open a book and there'll be answer. Life's wisdom will not come that way to you. And such a wisdom will not stand good to see you through this life and beyond. You need to internalize it, knowing it as life, not knowing it as words written in a book. Somehow, I have great regard and respect for whatever he might have said, but somehow I never got around to read it. It's not that I'm allergic to it, I never got around to read it. If I had time, I'll read the newspaper, because with the newspaper, I know how people are operating today in the world. If I have a little more time, I'll open up a news magazine, because by looking at what everybody is saying and doing, you know the consciousness of the world. Anyway, I don't believe anything that anybody says. I look at them the way they are. So, I want you to look at Krishna the way he is. Don't listen to his words. The same goes for everything. तो जब इस भाव से आप इसके साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डर ढह जाएंगे, क्योंकि अब भगवान कहीं बाहर नहीं है। उसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारे नहीं, चर्च में नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास ही है। जब आप परेशान हो लाइफ में, परेशान होना ही होना है, लाखों प्रॉब्लम्स हैं, परेशान क्यों नहीं हो गए? जब लगे कि मेरा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, तब कौन होगा? भगवान होगा। भगवान कौन है? ये जिसको आप साउंड समझ रहे हो, वो आपके साथ है। 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी, 50 साल बाद भी रहेगी। जब तक आप रहोगे तब तक रहेगी। इस बॉडी के छूट जाने के बाद भी रहेगी। अब ये बात अभी समझ नहीं आई। ये बॉडी छूट जाएगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ छूट जाएगा? ये नहीं छूटेगी। तो अब अगर ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है तो यहाँ से सरेंडर आ जाता है कि जब भगवान मेरे इतने पास है तो कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, कुछ किसी से डरने की ज़रूरत क्या है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दोगे, इस साउंड ऑफ साइलेंस के हाथ में अपने आप को दे दोगे, एंड यू विल बी पीसफुल। ठीक है जी। लास्ट रास्ता क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो किसी ना किसी मोटिव की वजह से ही कर रहे हो, नहीं तो करोगे ही क्यों? ठीक है ना? कोई ना कोई डिजायर होता है। तो आपके काम करने की वजह से या तो वो डिजायर पूरा होगा या नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन या तो पूरी होगी या नहीं होगी। हो जाए तब भी और नहीं हो तब भी भगवान के हाथ पे छोड़ दो। काम अपना प्रॉपर तरीके से करो, इसको बोलते हैं कर्मयोग। इतना सिंपल है। भगवान कौन? ये रहा, हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। इसके लिए पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोगों ने, कुछ जो अपने ये है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें फैला दी हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आना फाइनली यहीं पड़ेगा। अभी आओ, हजारों सालों बाद आओ, वो आपके ऊपर है, कब आते हो, आना यहीं पड़ेगा। इसके बिना मन शांत नहीं होगा। तो अब अगर अपने जो भी आपको मिला या नहीं मिला, सब मेहनत करने के बाद भी वो अगर आपने इसको सरेंडर कर दिया, आपने बोला भाई तेरा था, तुझे को दिया, खत्म, तो आप टेंशन फ्री हो गए। नहीं किया तो क्या होगा? रोते रहो, रोते रहो। कुछ मिल भी गया तो वो जाने का डर बना ही रहेगा, उसने जाना ही जाना है। नहीं मिला तो रोओगे रोओगे, मिल गया तो और की चाह पैदा हो जाएगी, फिर उसको पाने के लिए पागलों की तरह भागते रहोगे, फिर वो मिले ना मिले उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हर तरफ दुखी दुख होगा। इतना सिंपल है।
दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अगर ये चीज़ हमको समझ आ जाए तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है।